हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होना चाहती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए और मेरे जो कलेक्टिव्स ये एनर्जी हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उन सब के आभा मंडल को क्लेंस कर दिया जाए, या हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर, या बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराऊं और उन सबको शाउट आउट दूं। तो मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि उन सब की जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। राइट, सो सबसे पहला नेम आ रहा है मीनाक्षी शर्मा। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक्स अ लॉट। Rasmita Swain, thank you Rasmita, thanks a lot. Karma, thank you Karma, thanks a lot. Lalita 5538, thank you Lalita, thanks a lot. Seema Fook, thank you Seema ji, thanks a lot. Sunita Chopra, thank you Sunita ji, thanks a lot. Mrityunjay SWN, thank you Mrityunjay ji, thanks a lot. Meenal Kanti Biswas, thank you, thanks a lot Meenal, thank you. Nana S Kitchen, thank you so much Nana, thanks a lot. K Sindhu, thank you so much K Sindhu, thanks a lot. Bunny Man from London, thank you Bunny, thanks a lot, thank you. Vijay Tanna, thank you so much Vijay Tanna, thanks a lot, thank you. Jyoti Ratra, thank you Jyoti, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi, thank you once again. Kamini Rani, thank you so much Kamini, thanks a lot. Electrical, very easy for you, thank you, thanks a lot. Radhe Radhe, thank you Radhe Radhe, thanks a lot. Royal Star, thank you Royal Star, thank you. Divine Bhakti Vibes, thank you so much Divine Bhakti Vibes, thank you. Harvinder Kaur, thank you so much Harvinder, thanks a lot, thank you. Hardik Panelia, thank you Hardik, thanks a lot, thank you. Beauty Biswas, thank you so much Beauty Biswas, thanks a lot. Sonam Sen, thank you, thanks a lot Sonam, thank you, thanks a lot. Nirma Venu, thank you Nirma, thanks a lot. Jogender Shivale, thank you so much Jogender ji, thanks a lot, thank you. Geeta Diwan Music, thank you so much Geeta ji, thanks a lot. Leena Mishra, thank you Leena ji, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi, thank you once again. Kriti Sinha, thank you Kriti, thanks a lot. Sarabjeet Kaur from Australia, thank you, thanks a lot Sarabjeet. Kavita Deshmukh, thank you so much Kavita, thanks a lot. Samstar Sammy, thank you, thanks a lot Samstar. Sunita S, thank you, thanks a lot Sunita. Shehnaz Khan, thank you so much Shehnaz ji, thanks a lot. Joginder Shivale once again, thank you so much Joginder ji, thanks a lot, thank you. Jeel, thank you, thanks a lot Jeel. Amit Molla, thank you so much Amit, thanks a lot. Kavita Deshmukh, thank you so much Kavita ji, thank you once again. Inderjeet Arya, thank you so much Inderjeet ji, thanks a lot. Seema Fook, thank you, thanks a lot Seema ji. Rajneesh Tiwari, thank you so much Rajneesh ji, thanks a lot. Preeti Pais, thank you so much Preeti, thanks a lot. Sindhu Courtmaster, thank you, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi, thank you once again. सो ये मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और मुझे स्पेशल फील कराया। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। थैंक यू सो मच। राइट, सो डाउनलोड शेयर करने से पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी।
ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। प्योर सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करा गया है। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार से ईविल आई से प्रोटेक्ट करता है। ओके, नज़र दोष से आपकी रक्षा करता है। नज़र यानी कि जेलसी। ओके, हमारे प्रति अगर कोई जेलसी रखता है तो उस चीज़ पर तो हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आभामंडल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो ईविल आई प्रोटेक्टर है ये इस चीज़ में आपकी सहायता करता है, ठीक है, आपके आभामंडल को प्रोटेक्ट करता है और किसी भी प्रकार से नज़र को, आपकी एनर्जी को डिस्टॉर्ट करने से बचाता है। उस नज़र दोष की वजह से आपकी एनर्जी यानी कि आपका जो ऑरा है वो डिस्टॉर्ट होने से बचता है। ओके, और जो कोई भी आपके प्रति ईविल आई कास्ट करता है उनकी मंशा उन्हीं की तरफ वापस बैकफायर कर दी जाती है, ठीक है, उनकी मंशा उन्हीं की तरफ रिपेल कर दी जाती है, राइट, अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो। और ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है। इस कवच को मैं स्वयं तैयार करती हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। ओके, दिव्य शक्तियाँ जिस किसी को भी ये कवच प्रदान करना चाहती हैं तभी आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है और आप इसको प्राप्त कर पाते हैं। इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जो कि बहुत सरल से नियम है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन नियमों का पालन कर भी रहे होते हैं, अधिकतर लोग उन नियमों का पालन कर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मुख्य नियम यही है कि आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। ओके, एंड अगर आप किसी कारणवश इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ओके, लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और इसको धारण कर लेते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है। और ये मैं खुद आजमाई हुई बात आपको बता रही हूँ। ओके, आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, या फिर आप मुझे SMS भी कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपको मुझे SMS करना है क्योंकि मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। तो आप अगर चाहें तो आप ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप ये कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ ये डाउनलोड शेयर करूं, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये डाउनलोड हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। आप रीडिंग को आगे बढ़ाकर अपने लिए यूनिवर्स के डाउनलोड्स रिसीव कर सकते हैं। जो एनर्जी अपडेट मैं लूँगी टैरोस के द्वारा वो आप सुन सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई संदेश आपके लिए ज़रूर है यहाँ पर, बिकॉज अगर ईश्वर आपको इस संदेश तक लाए हैं तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, लेकिन रीडिंग के कुछ पार्ट आपके साथ ज़रूर रेजोनेट हो सकते हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ उसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ओके, तो आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आपने किसी बहुत ज़्यादा कठिन कार्मिक सिचुएशन को टाटा बाय बाय किया है, किसी ऐसे कार्मिक पर्सन से आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टक रखा, ठीक है, आपको रोक कर रखा। आप देखेंगे कि जब तक आप उस पर्सन के कांटेक्ट में थे आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ठीक है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, आपके जीवन में ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। आप मेहनत बहुत कर रहे थे, आप अपना हार्डवर्क कर रहे थे, आप अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे थे। आपका जो करियर है वो कहीं रुक सा गया था, एक रुकावट आपने लंबे समय तक एक्सपीरियंस करी है। तो आपने ऐसे किसी कार्मिक पर्सन को टाटा बाय बाय किया है, आपने ऐसे किसी कार्मिक पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है। ओके, ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है ये ये मुझे बहुत लो वाइब्रेशनल पर्सन दिख रहे हैं। ओके, इन्होंने ये चीज़ भांप ली थी कि आप किसी प्रकार की कोई बहुत पावरफुल ऊर्जा कैरी करते हैं, आप कुछ पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं,
हालांकि उस एनर्जी के बारे में आप इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे, ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन आपके अराउंड रहे हैं ये इस चीज़ से बहुत अच्छे से अवेयर थे। इस समय जब मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे फील हो रही है कि किसी को अपने नाभि के आसपास बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी की नाभि उखड़ गई है, ऐसा कुछ किसी को महसूस हो रहा है, ठीक है, किसी को पेट दर्द वगैरह एक्सपीरियंस हो रहा है, ओके, कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं किसी को। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको तब फील होती रही है जब आप उस कार्मिक के अराउंड रहे हैं। जब भी आप उस कार्मिक पर्सन के अराउंड रहते हैं तो आपको ये नाभि से रिलेटेड, अपने पेट से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहती है, बिकॉज आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इफेक्ट होता है, ओके। एंड मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप भली भांति इस चीज़ से अवेयर हैं कि ये कौन पर्सन है। आपने हो सकता है फूड पॉइजनिंग वगैरह भी एक्सपीरियंस करा हो, ओके, इस कार्मिक पर्सन के अराउंड। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरलेस है, ठीक है। इस पर्सन ने मल्टीपल सोल टाई बना रखे हैं, इस पर्सन ने अनेक लोगों से सोल टाइज क्रिएट करे हैं। सो ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है ये अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेकलेस हैं। किसी के भी साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाना इनके लिए आम बात है, ओके। वन नाइट स्टैंड्स, इस तरह की चीज़ें इन्होंने बहुत करी होंगी। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ भी सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहे हों, ओके। ये मेल पर्सन हो सकते हैं, फीमेल पर्सन हो सकती हैं, बट ये सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अट्रैक्टेड रहे हैं। एंड इस पर्सन ने आपको हो सकता है सेक्सुअल वे में अप्रोच किया हो, इस पर्सन ने हो सकता है आपसे कुछ इस प्रकार के सवाल करे हों, कुछ इस प्रकार से आपको अप्रोच किया हो जो अप्रोप्रिएट नहीं था, जो उचित नहीं था, जो आपकी बाउंड्रीज को एक प्रकार से चैलेंज करने वाली बात हो गई, इस प्रकार से आपको फील हुआ हो, जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। तो इस प्रकार से हो सकता है इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया हो, एंड हो सकता है इस पर्सन ने आपसे डायरेक्टली इस प्रकार की बात करी हो, आपको सेक्सुअली अप्रोच किया हो, जिस चीज़ को आपने डिनाई किया। तो क्योंकि चीज़ें उस पर्सन के अनुरूप नहीं हुई, क्योंकि आप उस पर्सन से इन चीज़ों को लेकर के राज़ी नहीं हुए, आप अग्री नहीं हुए, तो क्योंकि आप इस पर्सन से उन चीज़ों को लेकर के अग्री नहीं हुए, ठीक है, तो इस वजह से इस पर्सन ने आपको आपके जीवन को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने का प्रयास किया, आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करने का प्रयास किया, आपको परेशान करने का प्रयास किया, ठीक है, आपकी लाइफ को हेल बनाने का प्रयास किया। हो सकता है इस पर्सन ने एनर्जेटिक मैनिपुलेशंस किए हों आपके अगेंस्ट, आपको एनर्जेटिकली टारगेट किया हो, किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लिया हो, कुछ गंदी क्रियाओं का सहारा लिया हो, आपको अपने कब्जे में करने के लिए, आपको अपने चंगुल में करने के लिए, ओके, ताकि आप उसकी हर बात माने। एंड इस प्रकार के किसी कार्मिक पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। सो आपको हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कोई वापस से कॉल मिले, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको किसी न किसी प्रकार से अप्रोच करे। मुझे ये दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको दूर से डेफिनेटली आप पर नज़र रखते हैं, ओके, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। ये इस प्रकार के पर्सन हैं कि इनके जीवन में जो चीज़ सरलता से इनको मिल जाती है उसका ये महत्व नहीं जानते हैं, ठीक है, उसका ये महत्व नहीं समझते हैं या समझती हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। सो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके लिए क्या सिचुएशन सही बैठ रही है। आप अपनी सिचुएशन से पूरी तरह से अवेयर हैं, तो आपको ये पता है कि ये किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ओके। सो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको डेस्परेटली अप्रोच किया, और अभी फ़िलहाल मुझे ये पर्सन आपके जीवन पर दूर से नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, ओके, एंड बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जस्ट बिकॉज थिंग्स डिडंट गो देयर वे, जस्ट बिकॉज उनके अनुरूप चीज़ें नहीं गई, उनके अनुरूप चीज़ें नहीं हुई। इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, ठीक है, इन्होंने आपको बहुत नाइव समझा, इन्होंने आपको बहुत कमज़ोर समझा, जबकि आप एक बहुत पावरफुल बीइंग हैं। तो इन्होंने आपको चैलेंज करके एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति को चैलेंज किया है, एक बहुत पावरफुल ऊर्जा को इन्होंने चैलेंज किया है।
जब आपने इनके उस गलत अप्रोच को डिनाई कर दिया, जब इन्होंने आपको सेक्सुअली अप्रोच किया, तब आपको अप्रोप्रिएट नहीं लगा, आपको ठीक नहीं लगी वो बात, और आपने उसको बहुत ज़्यादा बहुत डिसेंट वे में आपने उस चीज़ को डिनाई कर दिया, तो उसके बाद भी इन्होंने आपके जीवन को बहुत कठिनाइयों से भरने का प्रयास किया। आउट ऑफ रिवेंज, बदले की भावना से इन्होंने आपके जीवन को हेल बनाने का प्रयास किया। सो हर प्रकार के संभव प्रयास इन्होंने करे, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि वो सारी चीज़ें आपके पास आकर, वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी ये आपकी तरफ भेज रहे थे, वो आपके पास आकर के पॉजिटिव एनर्जी में कैसे परिवर्तित हो जा रहे थे। सो जिस भी प्रकार का एनर्जी मैनिपुलेशन ये आपकी तरफ भेज रहे थे, वो आपके पास आकर के सब सकारात्मक एनर्जी में परिवर्तित हो जा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था बिकॉज आप एक पावरफुल बीइंग हैं, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। ओके, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने इनके बिना सरवाइव कैसे कर लिया, आप इनके बिना रह कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिक पर्सन, ठीक है, इनके अहंकार को आपने तोड़ा। ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं या रही हैं जिनको कभी किसी ने भी जब इन्होंने कभी किसी को सेक्सुअली अप्रोच किया है तो इनको कभी किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन आपने इनके अहंकार को तोड़ा। आपने इनको डिनाई किया, आपने इनको मना किया, आपने इनको इनकी प्लेस बताई, ठीक है, आपने इनको मर्यादा सिखाई, और इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। राइट, तो अभी फ़िलहाल मुझे वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड एनर्जी है इनकी। ठीक है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेबस दिख रहे हैं ये मुझे। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको जब कोई चीज़ सरलता से मिल जाती है तो ये उसकी कदर नहीं समझते हैं, लेकिन जो चीज़ इनको सरलता से हासिल नहीं होती है ये उसके पीछे भागते हैं, चाहे वो चीज़ इनको जीवन भर कभी प्राप्त ना हो। तो इस प्रकार का कुछ कार्मिक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऐसी कुछ कार्मिक सिचुएशन आपके जीवन में रही है, और आपने जब से इस पर्सन से खुद की एनर्जी को विड्रॉ किया है, हो सकता है इन्होंने आपकी एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास किया हो, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया हो। ठीक है, इन्होंने हो सकता है आपको वश में करने का प्रयास किया हो। राइट, तो वो जो कुछ भी वशीकरण वगैरह था वो ब्रेक हुआ है, आपके ऊपर ये सब कुछ भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं। ओके, आप एक दिव्य ऊर्जा धारण करते हैं और आपके ऊपर किसी भी प्रकार के एनर्जी मैनिपुलेशन का कोई भी असर नहीं होने वाला है। सो आप और आपकी जो फैमिली है वो पूरी तरह से सुरक्षित है हर प्रकार के एनर्जी मैनिपुलेशन से। ओके, ऑल्दो आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। राइट, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है और ये चीज़ आपसे छिपी नहीं है, आप इस चीज़ से पूरी तरह से अवेयर हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये कौन पर्सन है जिसने आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया, आपको इस प्रकार से अप्रोच किया, और आपने उस पर्सन को डिनाई किया, आपने उस पर्सन को मर्यादा सिखाई, आपने ये बताया कि इस प्रकार से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है इन्होंने मल्टीपल सोल टाई बनाए हुए हैं, ना जाने कितने लोगों से इनके सेक्सुअल कनेक्शंस रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेकलेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन, और जितना ज़्यादा इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें करी हैं उतना ज़्यादा ये ईश्वर से और दूर होते चले गए हैं। ठीक है, दिव्य शक्तियों से, दिव्य ऊर्जाओं से ये दूर होते चले गए हैं। इन शॉर्ट, ये आपसे दूर होते चले गए हैं। तो आप तक पहुंच पाना तो पूरी तरह से असंभव है। ओके, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप स्वयं दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा धारण करते हैं, तो आपको छू पाना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा असंभव सी बात है। राइट, सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए। सो ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने इनका उचित मार्गदर्शन नहीं किया, ईश्वर ने डेफिनेटली इनका उचित मार्गदर्शन किया था, इनको सही मार्ग पर चलाया था, बट इन्होंने बट इन्होंने अपने लिए गलत रास्ते चुने। ठीक है, इन्होंने मल्टीपल सोल टाइज बनाए, लोगों की अलग अलग सेक्सुअल एनर्जीज से कनेक्ट करा, और अभी फिलहाल ये इतने सारे लोगों की एनर्जी कैरी कर रहे हैं कि ये अपनी स्वयं की जो एनर्जी है उसको भूल चुके हैं। ठीक है, अब ये अपनी एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, ये स्वयं की तलाश में है। सो अभी मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको इसी प्रकार से अप्रोच किया जैसे उन्होंने बाकी लोगों को अप्रोच किया था।
हालांकि आपकी जो ऊर्जा है वो इन चीज़ों को नहीं समझती है, आप इस प्रकार की चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ओके। बल्कि इन चीज़ों से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता है। आप इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हैं, आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, और हर किसी को आप अपनी ऊर्जा में अलाउ नहीं करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि किसी के भी साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना यानी कि सोल टाई क्रिएट करना, ओके। उसके कर्मों को स्वयं पर लाद लेना, ठीक है, उसके कर्मों का बोझा स्वयं ढोना, राइट, और उसकी नेगेटिव एनर्जीज को ढोना। मल्टीपल लोगों के साथ अगर आप इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं तो मल्टीपल लोगों का कर्मा आप झेल रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं होता है आप क्यों डिप्रेस्ड हैं, आपको पता भी नहीं होता आप क्यों एजिटेट हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं होता है आपकी एनर्जी क्यों इतनी डिस्टर्ब्ड है। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एनर्जी को रीड कर लेते हैं, ठीक है, आप एनर्जी को सूंघ लेते हैं। तो आपने डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जी को सूंघ लिया, आपको ये चीज़ अच्छे से पता थी कि इस पर्सन ने मल्टीपल सोल टाइज बनाए हुए हैं, एंड ये पर्सन अपनी सेक्रुअल एनर्जी को लेकर के, सेक्सुअल एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरलेस है, ओके। एंड ऐसे किसी पर्सन को आप अपनी ऊर्जा में बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ असंभव है। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि जो दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए बच्चे होते हैं, जिनको ईश्वर अपने कार्य के लिए चुनते हैं, ठीक है, जिनको ईश्वर माध्यम बनाते हैं लोगों से कनेक्ट होने का, ओके, ऐसे बच्चों की परीक्षा ली जाती है। तो आपकी एक प्रकार से ये परीक्षा थी जिसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं। इस पर्सन को डिनाई करके इस पर्सन को आपने सही रास्ता बताया। हालांकि अब वो इस रास्ते पर चले ना चले ये उनका निर्णय है। आपने जो चीज़ करी आपने बिल्कुल उचित किया, और इसी वजह से डिवाइन एनर्जीज, दिव्य शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, और उन्होंने आपको उस कार्य के लिए चुना है, उन्होंने आपको अपने कार्य के लिए चुना है, आपको ऐसे कार्य में लगाया है जिसके लिए आप बिल्कुल फिट बैठते हैं। और इससे पहले कि वो आपको ये कार्य सौंपते, जो दिव्य कार्य उन्होंने आपको सौंपा है, आपका जो लाइफ पर्पस उन्होंने आपको सौंपा है, उससे पहले आपने इस टेस्ट को पास किया है, ओके। और ऐसा हर चोजन बच्चे के साथ होता है, हर चुने गए बच्चे के इंद्रियों को टेस्ट किया जाता है कि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी पर कितना ज़्यादा नियंत्रण रख सकते हैं। आपने पौराणिक कहानियों में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, जब भी कोई साधु सन्यासी कोई तपस्या कर रहे होते हैं तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी, उनका टेस्ट होता था। इससे पहले ईश्वर उनको किसी बड़े कार्य के लिए चुने, ठीक है, कोई बड़ी उपाधि उनको प्रदान करे, उनको उनके द्वारा करे गए जो तपस्या है उसका फल उनको मिले, उससे पहले उनका टेस्ट होता था, राइट। तो ये उसी प्रकार का टेस्ट था जिसे आपने पास किया है। लेकिन ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन थे आपकी लाइफ में, ये इस चीज़ में फेल हुए हैं, एंड इनको अभी भी एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, इनको अभी भी सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है, इनको अभी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, इनको आत्ममंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब ये अपना आत्ममंथन कर लेंगे, जब ये सोल सर्चिंग कर लेंगे, जब ये इन चीज़ों पर गौर करेंगे कि ये जो भी चीज़ें, जितने भी सोल टाइज इन्होंने क्रिएट करे हैं, इससे इनको हासिल क्या हुआ, ओके। अल्टीमेटली ये स्वयं को अकेला पाते हैं, अल्टीमेटली ये आज भी खाली महसूस करते हैं, अल्टीमेटली ये आज भी उदास रहते हैं, अल्टीमेटली आज भी ये अकेला महसूस करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें इनको सोचने की आवश्यकता है और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, ईश्वर ने जो कार्य आपको सौंपा है आप बखूबी उसको निभा रहे हैं। आप जिस किसी की भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल एनर्जी धारण करते हैं। आप ये जो दुनिया है ना, इसको एक रंगमंच की तरह देखने लग गए हैं, ठीक है। कौन रो रहा है, कौन किस चीज़ के लिए परेशान है, कौन रुपए पैसे जायदाद के लिए रो रहा है, किसके जीवन में क्या इश्यूज चल रहे हैं, कौन किससे परेशान है, ये सब कुछ आपको एक नाटक सा लगता है, एक तमाशा सा लगता है, राइट। और आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, राइट। तो आपकी जो ऊर्जा है वो अपग्रेड कर गई है जस्ट बिकॉज आपने इस टेस्ट को पास किया है। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये जो उपलब्धि आप प्राप्त कर रहे हैं, ये जो कुछ भी आप जीवन में हासिल कर रहे हैं, ये इस वजह से है क्योंकि आपने ईश्वर के द्वारा करे गए इस टेस्ट को फुल नंबर से पास किया है।
और आपसे दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। इसी वजह से आपके जीवन में वो सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। आप प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, राइट? प्रेम जो है वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है एंड लस्ट जो है वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, ठीक है? लस्ट यानी कि वासना, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी है एंड लव, प्रेम, ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ओके? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो आपकी जो ऊर्जा है वो हाई वाइब्रेशन पर रहती है। आप लव के द्वारा चलते हैं, ना कि लस्ट के द्वारा। तो आपको लव कंट्रोल करता है, ओके? लव जो अपने आप में स्वयं राधा कृष्ण की ऊर्जा है। सो डिवाइन एनर्जीज मुझे आपको ये बताने के लिए कह रहे हैं कि ये मात्र एक रीडिंग नहीं है जो आप रिसीव कर रहे हैं, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो आप रिसीव करते हैं, ठीक है? जिन लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये रीडिंग रिसीव करने से क्या होता है, रीडिंग सुनने से क्या होता है, तो ये उनके लिए एक आंसर है यूनिवर्स की तरफ से कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो आप रिसीव कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो चावल होते हैं, ठीक है, जब उनमें गंदगी होती है तो हम या तो उनको पछोड़ते हैं, ओके? जिसको सूप वगैरह से पछोड़ना आता है वो उनको पछोड़ते हैं, या तो उनको बिनते हैं जिसमें टाइम लगता है, और या फिर आप उसको पानी से भरते हैं, साफ पानी से आप उसको फिल करते हैं, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उस चावल में वो ऊपर आ जाती हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग बिल्कुल उसी प्रकार से आपके लिए वर्क करेगी। ये एक प्रकार से ऊर्जा की बरसात है जो आप पर हो रही है, ओके? तो आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर हो जाएंगी, जो भी नेगेटिविटीज़ आपके जीवन में होंगी वो दूर हो जाएंगी, ठीक है? जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में होंगे, जो रुकावटें आपके जीवन में होंगी वो दूर होंगी, और आपके जीवन में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी जो आप चाहते हैं। जितनी भी पॉजिटिविटी इस रीडिंग में है, ठीक है, वो सब कुछ आपको प्रदान करी जाएगी एंड जितनी भी नेगेटिविटी इस रीडिंग में आएगी, ओके, वो सब कुछ रिलीज होगा, वो सब कुछ रिमूव होगा आपकी लाइफ से। इस वजह से ये रीडिंग आप तक पहुंचाई जाती है यूनिवर्स की तरफ से। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी, मुझे पता है मेरी डिवाइन फैमिली ऑलरेडी बहुत विजिलेंट है, वो सभी जीव जंतुओं की सेवा करने में लगे रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई डिवाइन फैमिली, ठीक है? मेरी जो डिवाइन फैमिली है वो करोड़ों में एक है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप लोग स्पेशल हैं, एक एक मेंबर मेरा करोड़ों में एक है, ओके? नायाब हैं आप सब जीवों के लिए हमेशा सजग रहते हैं। आप लोग अपने घरों के सामने पानी का प्याला रख रहे हैं और सभी जीवों के लिए उनके पानी वगैरह का आप बंदोबस्त करते हैं, उनके खाने का बंदोबस्त करते हैं। आप विजिलेंट सोल हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं, ठीक है? इस पृथ्वी पर एंजल के स्वरूप में, एक फरिश्ते के स्वरूप में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान अलग डायमेंशन में रहते हैं तो वो आपके रूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इन चीज़ों को लेकर विजिलेंट हैं। इवन एक छोटी से छोटी चींटी को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सजग हैं एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है आप सब पर। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं, किसी भी प्रकार के जो जीव हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खाना ढूंढते हैं, और हम इंसान क्या करते हैं, इनको लाठियाँ मार देते हैं, इनको भगा देते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग फील होता है मुझे जब मैं ये चीज़ देखती हूँ। हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं जिसमें खाना खिलाते हैं, इंसानों को खाना खिलाते हैं। डेफिनेटली खिलाना चाहिए, नीडीज़ को खाना खिलाना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य है ये। बट साथ ही साथ जो दूर खड़े जानवर मुंह ताक रहे होते हैं, ठीक है, जो जूठी प्लेट में खाना ढूंढते हैं, ऐसे जीवों के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। इनके लिए एक ऐसा फंक्शन रखना चाहिए, इस प्रकार से इनके लिए एक लंगर रखना चाहिए जिसमें इनको खाना खिलाया जाए, और ऐसी कोई सड़ी गली सब्जियां नहीं, अच्छी ताज़ी सब्जियां, राइट? ताज़ा खाना, अच्छे खाने पर, अच्छे फलों पर, अच्छी सब्जियों पर इनका भी अधिकार है। हम इंसानों ने हमेशा शुरू से देखा है कि अच्छी सब्जियां तो हम लोग खुद खा लेते हैं और जो खराब सड़ी गली सब्जियां होती हैं वो इनके लिए डाल देते हैं। क्या इनका अच्छी सब्जियों पर, अच्छे फलों पर कोई हक नहीं है? डेफिनेटली इनका भी हक है उस पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी डिवाइन फैमिली को इन चीज़ों को लेकर के सजग होते हुए देखती हूँ। मेरे जो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजी हैं, वो लिटरली सब्जियाँ, फल वगैरह खरीदते हैं, 5-5 किलो,
इस प्रकार से अच्छी अच्छी सब्जियां छाट कर खुद ये जो भूखे जीव हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, इनके लिए डालते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ये सब देखकर कि इस प्रकार के जो एंजल्स हैं वो इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं और यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जितना भी आप सबका मैं धन्यवाद करूं उतना कम है, और ईश्वर को आप पर बहुत गर्व है और इसीलिए आप एक पावरफुल बीइंग हैं। ठीक है, आपके अराउंड किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। नेगेटिव एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल चीज़ है, ओके, वो बहुत नीचे रह गई और आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, राइट। सब आप लो वाइब्रेशनल चीज़ों से, लो वाइब्रेशनल लोगों से रेजोनेट ही नहीं करते। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि किसी के घर में कोई घोंसला वगैरह बना है और वो उस घोंसले को हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, भले ही चाहे उनके जीवन में कुछ हो सकता है धन से संबंधित कुछ स्पीड धन की थोड़ी स्लो हो गई हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप उस घोंसले को हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि उस घोंसले में हो सकता है उस चिड़िया ने कुछ अंडे वगैरह दिए हों, और ऐसा कुछ मुझे एनर्जी पिक हो रही है। सो इट्स अ वेरी काइंड जेस्चर जो आप कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज वॉचिंग दिस। ठीक है, यूनिवर्स इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यूनिवर्स भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही उस घोंसले से वो चिड़िया वगैरह जो भी हैं, चिड़िया के बच्चे वगैरह उड़ जाएंगे, उसके बाद आपके जीवन पर जो धन वर्षा होने वाली है आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है कि कोई अपने धन के ब्लॉकेजेस की परवाह ना करते हुए कोई घोंसले को अपने घर से हटा नहीं रहा है। वाओ, दिस इज़ ये बहुत ज़्यादा सेल्फलेस वर्क है जो आप कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काइंड और सेल्फलेस जेस्चर है जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज़ वॉचिंग दिस, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आप आने वाले टाइम में अपने जीवन में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। आपकी मैरिड लाइफ में मैं कुछ सुधार होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई आपको प्रपोज करने वाला है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। या यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। या सो आप अपने पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आपका और किसी पर फोकस नहीं है, और ऐसा करने से आप अपनी ओर एक अनकंडीशनल प्रेम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करेंगे, आप भावनात्मक रूप से पूर्ण महसूस करेंगे। ठीक है, आपको अधूरा महसूस नहीं होगा। आपकी एज 20 हो सकती है, आपकी बर्थडे डेट 20 हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप 20th को आपका बर्थडे होता है, या किसी भी मंथ की 20th को आपका बर्थडे होता है, या लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका। समथिंग अबाउट शैम्पेन ग्लास, ओके, 2 ऑफ कप्स। आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी ओर ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं। ये यहाँ पर किसी प्रकार की लस्ट वाली एनर्जी नहीं है ये। ठीक है, ये इमोशंस वाली एनर्जी है। इमोशनली आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे। सी, बिकॉज आपने उस लस्ट वाली एनर्जी को डिनाई किया है, इस वजह से आपके जीवन में ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको इमोशनली पूर्ण महसूस कराने वाले हैं। इमोशनली आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे। ओके, हो सकता है आप किसी पार्टी वगैरह में जाएं, कुछ शादी वगैरह की एनर्जी आ रही है। योर इंट्यूशंस एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। या सो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी बता देते हैं क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है, कौन व्यक्ति आपके प्रति कैसे भाव रखता है, ये आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं। ठीक है, कौन आस्तीन का सांप है, आप अच्छे से समझते हैं ये चीज़ें। या आपको केयरफुल रहना है, राइट, विजिलेंट रहना है। कौन आपके प्रति कैसे भाव रखता है, इन चीज़ों को लेकर के आपको विजिलेंट रहना है। आपको लोअर वाइब्रेशनल चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपका बर्थडे हो सकता है 28 को होता है, किसी भी मंथ की 28 को आपका बर्थडे होता है। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। 2 अगस्त आपका बर्थडे हो सकता है। 8 फरवरी आपका बर्थडे हो सकता है। 28 जनवरी, 28 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर आपका बर्थडे हो सकता है। या
या सी आपने उन चेन्स को ब्रेक किया है, ठीक है, जो एनर्जी मैनिपुलेशन जिसमें आपको बांधने की कोशिश करी गई, ठीक है, हो सकता है आपकी एनर्जी को बांधने की कोशिश करी, आपको रोकने की कोशिश करी, आपके करियर में हो सकता है बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी, किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन में कुछ दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी। पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिज में भी कुछ दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी गई, राइट, जिन चीज़ों को तोड़ दिया गया है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी को रोकने की कोशिश करें। इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है आपके जीवन में करी गई हों, ओके। और आपको रॉन्ग वे में अप्रोच किया हो किसी ने, जिसको आपने डिनाई किया है, ठीक है, जिसको आपने एंटरटेन नहीं किया है, और इस वजह से आपको ईश्वर ने चुना है। इस वजह से आपको एक पावरफुल मैनिफेस्टर की उपाधि दी गई है, ओके। आप जो कुछ भी ईश्वर से मांगते हैं वो चीज़ आपको दी जाती है, वो चीज़ आपको मुहैया कराई जाती है, ठीक है। एंड जल्द से जल्द वो चीज़ आपको मिलती है, आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है, तुरंत सुना जाता है, ठीक है, बिकॉज आप एक प्योर हार्ट कैरी करते हैं और आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई एम टेलिंग यू, आपकी विश को सुना जाता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। आपकी विश ग्रांट करी जाती है। योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। सो आपने जो कुछ भी डिज़ायर किया है ना, आप हो सकता है उस चीज़ को भूल गए हैं। आप ये सोच रहे हैं अभी इस वक्त कि मैंने क्या मांगा है यूनिवर्स से, ऐसा क्या मांगा था मैंने, आप अभी याद कर रहे हैं। तो तभी विश पूरी होती है जब आप उसको मांग कर भूल जाएं, ठीक है। आपने यूनिवर्स से क्या मांगा था, आप उस चीज़ को मांगे ईश्वर से और फिर याद ना रखें, तो तभी यूनिवर्स उस चीज़ को ग्रांट करते हैं, ठीक है। वो ये देखते हैं कि ये पर्सन अपने कार्य पर फोकस कर रहा है या नहीं। सो यूनिवर्स का नेचर है सरप्राइज़ करना। आपने देखा होगा हमारे जीवन में जब हम चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो अचानक से ही चीज़ें होती हैं। जब हम किसी को अपने जीवन से खो देते हैं, ठीक है, हमारे जो लॉस्ट लव्ड वंस हैं वो अचानक से हमारे जीवन से चले गए, तो यूनिवर्स का नेचर है सरप्राइज़ करना, अचानक से चीज़ों को करना, राइट। तो जब आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे होते हैं तब आपके जीवन में आपकी विश को ग्रांट किया जाता है, ओके। आप अपने कार्य में लगे रहिए और आपके विश पर यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए कुछ गिफ्ट तैयार कर रहे होते हैं उस समय। सो ट्रस्ट यूनिवर्स, आपके लिए कुछ गिफ्ट आ रहा है, ओके। आपकी कोई विश ग्रांट कर दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। आपने कुछ डिज़ायर किया था, कुछ मांगा था ईश्वर से, कुछ बहुत शिद्दत से आपने मांगा था, सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर आपने वो चीज़ मांगी थी तो वो आपको प्रदान करी जा रही है, ओके। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपको वो चीज़ प्राप्त होगी, ओके। या रुकावटों को हटाया जा रहा है आपके जीवन से, ठीक है। जो भी रुकावटें थी आपके जीवन में उनको हटाया जा रहा है। आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, या हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय। तो बहुत सारी हैप्पीनेस का समय आ रहा है आपके लिए, ओके। रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो अभी जो आपकी एनर्जी है वो रिन्यू हो रही है, एनर्जी में परिवर्तन किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रही थी, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, ठीक है, बहुत बंधन जैसा आपको फील हो रहा था, तो आप बंधन से फ्री होने वाले हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन हो, आप उससे मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। आपका जो कनेक्शन है स्पिरिट्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा गहराता दिख रहा है मुझे, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके अराउंड रहते हैं। जब भी आपको ड्रैगन फ्लाई वगैरह दिखे ना, तो आपको अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स ज़रूर करना है, ठीक है, उनको थैंक यू कहना है। या लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका, या हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत ब्राइट एनर्जी में रहेंगे आप, और अपने जीवन में इमेंस ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इतनी ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, ओके। इतनी ज़्यादा ग्रोथ, और आपको ये भी बताया जा रहा है जितना ज़्यादा एनर्जी मैनिपुलेशन आप पर किया जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा ईवल स्पेल्स आप पर किए जाएंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा तीव्रता से आप ग्रो करेंगे, राइट। सो ये चीज़ आपको यूनिवर्स बता रहे हैं।
ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और लेट्स सी क्या एनर्जी अपडेट है, मेरे कलेक्टिव्स को और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। डियर स्पिरिट्स, माय डियर एंजल्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए, मैसेज दीजिए प्लीज। ओके, या नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, या मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहले, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है। राइट, ओह माय गॉड। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है मैजिशियन रिवर्स। या तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस दौरान जब आप ये रिसीव कर रहे हैं ना मैसेज, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपकी तरफ जो ईवल स्पेल भेजा गया है ना अभी करेंटली, वो बैकफायर हुआ है, ठीक है। वाइल यू आर रिसीविंग दिस रीडिंग, दिस एनर्जी, जिस दौरान आप ये रीडिंग रिसीव कर रहे हैं, ये एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, किसी प्रकार का ईवल स्पेल था। सो अभी जिस दौरान आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं, ये एनर्जी रिसीव कर रहे हैं आपके ऊपर जो भी ईवल स्पेल किया गया था वो बैकफायर किया गया है, उसको वापस वहीं फेंका गया है जहाँ से वो नेगेटिविटी आई थी, वो नेगेटिव एनर्जी आई थी। आपकी एज 32 हो सकती है, ओके। आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, 2 मार्च आपकी बर्थडे हो सकती है, 5 मई आपका बर्थडे हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है किसी नार्सिसिस्ट पर्सन ने, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन ने जिसको ना बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि उनकी बात को कोई काटे, ठीक है, उनकी बात को चुपचाप मान लिया जाए। ऐसे किसी पर्सन ने डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ ईवल स्पेल किया था, ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी ईवल स्पेल है ना, ये बैकफायर हुआ है, ओके। इस पर्सन ने आपको अकेला कर देना चाहा, इस पर्सन ने आपको एकदम अलग थलग करना चाहा, इस पर्सन ने ऐसा चाहा कि आपके जीवन में कोई नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा महसूस हो कि आप पूरी तरह से अकेले हैं दुनिया में, ठीक है, आपको ऐसा फील कराना चाहा, आपको सब छोड़कर चले जाएं, आपसे दूर हो जाए। इस प्रकार का ईवल स्पेल इस पर्सन ने किया जिससे आपको सुरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। आपके अराउंड एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर दिया गया है, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज ने ये चीज़ देखी। आपने इस पर्सन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, ये कोई कार्मिक पर्सन था डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन ये पर्सन अब आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो डिवाइन एनर्जीज ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपने इस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तभी बेवजह अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से, बदला लेने के भाव की वजह से इस पर्सन ने आपको टारगेट किया, जस्ट बिकॉज आपने अपने धर्म का पालन किया, ठीक है, अपने उसूलों का पालन किया, जो आपके उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपने उनको फॉलो किया। इस पर्सन ने आउट ऑफ रिवेंज, आउट ऑफ ईगो, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर की वजह से, जस्ट बिकॉज इस पर्सन को कोई ना नहीं कह सकता है, ठीक है, तो इस पर्सन की ईगो ट्रिगर हुई, आपने इस पर्सन का ईगो ट्रिगर किया एंड इस वजह से इस पर्सन ने आपको टारगेट किया, ओके। और ये सारी चीज़ें ब्रेक हो चुकी हैं, ठीक है। ये जो भी बेड़ियाँ, जो भी जंजीरें इस पर्सन ने क्रिएट करने की कोशिश करी थी आपके जीवन में, वो सब फेल हुआ है, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है, बिकॉज आप एक न्यूट्रल सोल है। तो ये पर्सन अगर किसी और के माध्यम से आपको पेन पहुंचाना चाहे तो भी आपको पेन नहीं पहुंचा सकते। इन्होंने, मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें क्रिएट करना चाहा, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ को भी इन्होंने टारगेट किया है। और आपको हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी इंटरप्शंस रही हों, ठीक है, आपका दिल टूटा, आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट किया ताकि आपके पार्टनर आपको हर्ट करें, ओके। ऐसी चीज़ें हैं, इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ हुई है और ये सब कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन था, ओके। इस पर्सन ने आपको स्पिरिचुअली टारगेट किया है,
ठीक है, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं, आपको इस प्रकार से बांधने का प्रयास किया ताकि आप जो भी आप पूजा पाठ जाप ध्यान करते हैं आप वो ना करें, उसमें आपका मन ना लगे, आपको इस प्रकार से बांधने का प्रयास किया, लेकिन ये संभव नहीं है। इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ हाइड करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और ये आपकी ऊर्जा है जो नेचुरली आपके अंदर प्रवाहित रहती है। ठीक है, आपके अंदर इस चीज़ का प्रवाह है, इस ऊर्जा का प्रवाह है, तो ये कुछ भी हिडन चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, आपको ये स्वाभाविक सी बात लगती है, हालांकि ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लगती है। ओके, सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या आपकी तरफ प्यार ना आ सके, आपके पार्टनर आपसे जो प्यार करते हैं ना वो आपसे जाहिर ना कर सकें। ओके, धन की जो स्थिति है उसमें डिले रहे, आपके प्यार की स्थिति है उसमें डिले रहे, इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में क्रिएट करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी डिले वाली सिचुएशन थी, चाहे वो धन की स्थिति में हो चाहे वो प्रेम की स्थिति में हो, अब उसमें फर्दर डिले नहीं रहेगा। ठीक है, उस डिले को हटाया जा रहा है, उस डिले को बैकफायर किया जा रहा है। हर प्रकार की डिले वाली एनर्जी को, हर प्रकार की रुकी हुई एनर्जी को फ्लो में लाया जा रहा है, रुकावट को दूर किया जा रहा है, आपके जो जीवन में रुकावटें थी उनको हटाया जा रहा है। आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया कि आप अपने अपने पार्टनर के प्रति कोई भावना, कोई धारणा नहीं बना पा रहे थे, या आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया, या पूरा बंधन वाली स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी में आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आप कुछ किसी चीज़ के प्रति कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी। ठीक है, आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। आपको स्पिरिचुअली बाइंड करने की कोशिश करी, ठीक है, ताकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ना कर पाएँ, ईश्वर में आप का मन ना लगे, पूजा पाठ में आपका मन ना लगे, ठीक है, साधना में आपका मन ना लगे, इस प्रकार से आपको बांधने की कोशिश करी गई है। लेकिन जीत आपकी हुई है, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। ओके, ये सब कुछ ब्रेक हुआ है, ये बैकफायर हुआ है, बिकॉज आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, यू आर वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। और तो और ये जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया ना, इसका प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप में वर्क करने वाला है, आपको हील करने वाला है। ये जो भी एनर्जी आपकी तरफ आई है, ये छन कर आपकी तरफ आई है। ठीक है, एक प्रकार से पूरी तरह से चेंज होकर आपकी तरफ आई है, ट्रांसम्यूट होकर ये आपकी तरफ आई है। ओके, सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके लिए ये ऊर्जा आपकी तरफ आई है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से आप विक्टोरियस हो रहे हैं। राइट, जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां आप प्राप्त कर रहे हैं। तो इन अ वे इनडायरेक्टली ये जो कोई भी हेटर हैं, इन्होंने आपकी सहायता करी है आगे बढ़ने में। ओके, इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन आपको ईश्वर ने उतना ही ज़्यादा ऊंचा उठाया। ठीक है, आपकी एनर्जी को अपग्रेड कर दिया, ताकि आपको वो व्यक्ति, वो पर्सन आउट ऑफ रिवेंज, बदले के भाव से जो आपको हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा ही ना पाए। ठीक है, वो आपको टच ही ना कर पाए, आप तक एक्सेस कर ही ना पाए। तो हो सकता है आपने इस पर्सन से अभी अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया हो, आप इनके साथ कहीं पर भी कांटेक्ट में नहीं है, या आपकी एनर्जी को हर प्रकार से अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, इवन धन की स्थिति में भी आप अपग्रेड महसूस करेंगे, और आप हो सकता है किसी प्रकार की कुछ पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ आप उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, पब्लिक में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है, आपके जो लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली में आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, आपके जो सोल ट्राइब के लोग हैं, ठीक है, उनसे आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, आपको पब्लिकली अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलेगा, और ये चीज़ें ये पर्सन देखने वाला है या देखने वाली है। ठीक है, ये मेल पर्सन है या फीमेल है, ये नार्सिसिस्ट पर्सन, ये पर्सन देखेंगे, इनको फर्स्ट सीट ईश्वर देने वाले हैं आपकी उपलब्धियों को देखने के लिए। ओके, सो इनको ये सब देखना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने आपके लिए जीवन में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करने का प्रयास किया है, जो ईश्वर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ओके,
आपकी तरफ हो सकता है कोई प्रपोजल आए, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपकी यादों में खोया हुआ है, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, कुछ बचपन की यादें हैं, या आपकी तरफ कोई ऐसे पार्टनर आ सकते हैं जिनके साथ आपकी कुछ यादें हैं, ठीक है, चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। राइट, सो यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। राइट, सो यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं। इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, या सो आपके हेटर्स का कर्मा सीजन है ये। आपको जिस किसी ने भी बेवजह परेशान करने का प्रयास किया, उनके लिए कर्मा आ रहा है, ठीक है। उनके बुरे कर्म उनके सामने आएंगे और उनके बुरे कर्मों का उनको सामना करना पड़ेगा। राइट, यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। सो आप किसी को चेज नहीं करते हैं, आप किसी का पीछा नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं। आप स्वयं पर फोकस करते हैं, ठीक है, अपने जीवन की ग्रोथ पर फोकस करते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करते हैं और चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। ओके, आपको पता है कि आपके लिए जीवन में क्या उचित है और आप उन्हीं चीज़ों से स्वयं को सराउंड करके रखते हैं। ओके, न्यू बिगनिंग फॉर यू, एक नई शुरुआत हो रही है आपके लिए। तो हर प्रकार के ईवल स्पेल को तोड़ दिया गया है, हर प्रकार के ईवल स्पेल का प्रभाव हटा दिया गया है आपके जीवन से। आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है। यू आर ब्लूमिंग, या सो आप खिल उठे हैं, आपका जीवन खिल उठा है उस कमल की तरह, ठीक है, जिस पर स्वयं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी विराजमान है। तो आप बहुत ज़्यादा ब्लूम करने वाले हैं। ओके, आप खिल उठे हैं। योर पार्टनर रिग्रेट्स वॉट ही और शी डिड टू यू। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी बर्ताव किया वो रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत पछतावा हो रहा है अभी आपके साथ गलत बर्ताव करने के लिए, बहुत पछता रहे हैं वो। यू आर विद गोल्डन ऑरा। तो आपका जो आभा मंडल है वो स्वर्ण आभा मंडल है। ओके, दिव्य आभा मंडल है, दैवीय ऊर्जा धारण करते हैं आप। सो आपकी एनर्जी के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप चोजन बीइंग हैं, पावरफुल बीइंग हैं, ठीक है। ये एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, ये ऊर्जा आप रिसीव कर रहे हैं। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज़। तो अगले 72 घंटे में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। या ओके, आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, या सो कोई पछता रहा है डेफिनेटली। किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत चुनाव किया, उन्होंने गलत चीज़ को चूज़ किया। कोई बहुत पछता रहा है, ठीक है, किसी ने कुछ गलत निर्णय लिया, गलत चीज़ को चूज़ किया। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इस साल, ठीक है। आप हो सकता है कम्युनिकेशन फील्ड में हो, आप हो सकता है रेडियो जॉकी हैं, आप हो सकता है एंकर हैं, ठीक है, एंड आप हो सकता है टीवी एंकर हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे मिल रही है। अपने प्लान्स और सक्सेस को सीक्रेट रखें। आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, ठीक है, अपनी सक्सेस को सीक्रेट रखना है आपको। वन लास्ट, प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आप विंटर्स में कुछ प्रोग्रेस देखेंगे अपने जीवन में, ठीक है। आने वाले विंटर्स में, आने वाली सर्दियों के सीज़न में आप कुछ प्रोग्रेस देखेंगे। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 2 मोर, 2 और हैं यहाँ पे। या वांटेड टू स्टील योर एनर्जी। आपकी एनर्जी को स्टील करना चाह रहा था कोई, आपकी एनर्जी को चुराना चाह रहा था कोई। तो ईवल स्पेल्स आपके ऊपर करे गए, ठीक है, आपको गलत तरह से अप्रोच किया गया। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुराना चाह रहा था कोई। ओके, किसी को पता था ये अच्छे से कि आप बहुत ज़्यादा दैवीय ऊर्जा धारण करते हैं या दैवीय ऊर्जा धारण करती हैं। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। करियर चेंज, आपके करियर में कुछ चेंज आ रहा है, आप करियर बदल रहे हैं, ठीक है, कुछ करियर में बदलाव हो रहा है किसी के। या वांट टू बी हैप्पी फॉर एवर, कोई हमेशा के लिए खुश रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है। राइट, तो आप हैप्पी रहेंगे, आपको ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप हमेशा एक सुखी और प्रसन्न जीवन व्यतीत करेंगे। ओके, आपके जीवन से हर प्रकार की दिक्कतों को, मुश्किलों को हटाया जा रहा है। ओके, आप ये ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं, ये एक प्रकार की मैनिफेस्टेशन है। ये मात्र एक रीडिंग नहीं है, ये एक प्रकार की मैनिफेस्टेशन है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं।
ठीक है, ये कंफर्मेशन है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके जीवन में घटित होगी, और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है उसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा। सो सी, कर्मा इज हिटिंग योर एनिमीज बिग टाइम। तो आपके एनिमीज, ठीक है, जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, आप किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन आपके प्रति जो कोई भी गलत भाव रखते हैं उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, कर्मा इज हिटिंग देम बिग टाइम। या आपका गलत चाहा, उन्होंने आपका गलत चाह के बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने बहुत पावरफुल ऊर्जा का अपमान किया है, ठीक है, दैवी ऊर्जा का अपमान किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? ठीक है, आपके लिए मैं मैसेज ले लेती हूँ। मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या करना उचित रहेगा। जो भी मेरे कलेक्टिव्स ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं उनके लिए अपकमिंग सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। ओके, मेरे कलेक्टिव्स को ऐसे में क्या करना चाहिए, मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करिए। क्या मैसेज आ रहा है? ओके, राइट, एक कार्ड आया है यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी आई है इनसाइट। सी, एन एपिफनी, या an epiphany often arrives when the mind is totally quiet. Yeah, give yourself a mental break to open up your imaginations and allow brilliant ideas to emerge. Bright ideas are coming. So आपको अपने मन को एकदम शांत करना है, ठीक है, ताकि, ठीक है, ये जो कुछ भी आपके अराउंड एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ, जिस भी पर्सन ने आपकी एनर्जी को टारगेट किया, स्टील करने की कोशिश करी, चुराने की कोशिश करी, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, ये सब कुछ यूनिवर्स ऑलरेडी तोड़ फेंक रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ तोड़ फेंका जा रहा है। ओके, ये सब आप पर वर्क नहीं करेगा, और उल्टा आपके एनिमीज़ पर ही ये जो कर्मा है ये बहुत ज़्यादा बड़े रूप में हिट करने वाले हैं उनको। ओके, आपको अपने मन को शांत रखना है। आपको कहा जा रहा है आपको अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करना है। आपके पास कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको अपने आइडियाज़ पर वर्क करना है। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना सीखना है। ये जो कुछ भी मैनिपुलेशन वगैरह हुआ है ना, जिस भी पर्सन ने आपकी एनर्जी को टारगेट किया है ना, इन सब चीज़ों का सामना करने के बाद ना आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डगमगाया है। ठीक है, आप लोगों को ट्रस्ट करने में डर रहे हैं। आपको किसी ऐसे पर्सन ने हर्ट किया है जिस पर आपको बेहद विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, तो आपका विश्वास तोड़ा है किसी पर्सन ने, एंड अब आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आप सेफ हैंड्स में हैं। ठीक है, अब आप यू आर इन गुड हैंड्स। ओके, ट्रस्ट, विश्वास रखिए कि आप एकदम सुरक्षित हैं। तिनके मात्र भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि आप कहीं से भी दिक्कत में हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ओके, सो फील सेफ, यू आर इन गुड हैंड्स, आप सेफ हैंड्स में हैं। Okay, trust can only be built and restored with honesty and sincerity. Trust yourself, trust others, and trust that you are divinely supported at this time. Yeah, so आप trust करिए। okay, आपको divine energies support कर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। okay, तो अब आप अपनी creativity पर focus करिए, बस आपको ये कहा जा रहा है। आपके अराउंड सेफ लोगों को, अच्छे लोगों को लाया जा रहा है। ठीक है, जो आपके प्रति अच्छे भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को लाया जा रहा है। आपके अराउंड ऐसे लोगों को रहने ही नहीं दिया जाएगा जो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं। ठीक है, उनको अपने आप रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, इम्प्योरिटीज़ की तरह उनको हटा दिया जाएगा आपकी ऊर्जा से। सो ये चीज़ आपको बताने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।